Good morning, everyone. So, in the previous classes, we have completed our chapter 7, System of Particle and Rotational Motion. From today, we are going to start our next chapter, chapter number 8, Gravitation. This is very important. इसकी कुछ चीजें you have done in a class 9, but in more detail we will discuss here. So from this chapter, we are going to start our first topic, which is Newton's law of gravitation. Sometimes it is also known as Newton's universal law of gravitation. Why universal is added here? Because this is valid everywhere in the universe. There is no violation of this law at any places or at any position or in any cases. So simply it is known as the Newton's law of gravitation या Newton's universal law of gravitation. This is very important law. और इसके बारे में थोड़ा सा आपने ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ड आपने पढ़ा होगा, इन क्लास 8th में भी पढ़ा होगा आपने, और देन क्लास 9th में ये लॉ पूरा आपने देखा होगा. तो सिंपली दिस इज द जस्ट रिवीजन ऑफ दैट कि व्हाट इज द स्टेटमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये आपने पढ़ा भी होगा, पहले समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम बात करेंगे. सबसे पहले every particle in universe, clear, that particle आपका बड़ा है छोटा है, only the condition is that should be massive. in universe के जितने भी massive particles हैं, what they are doing, they are attracting every other या each other, they all are attracting every other particles with a force which is directly proportional. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between these two particles. Clear? Or the direction of this force always act along the line joining the two particles. फिर से एक बार समझ लेते हैं कि what is the statement of Newton's law of gravitation, कि this is true for each and every cases, each and every particles के लिए. तो ये कह रहा है कि in universe each particles attract to each other with the other particle. Clear? And that force of attraction, उसी का नाम होता है gravitational force. Clear? What is the gravitational force? This is the force of attraction between two massive bodies, between two massive particles, मतलब जिनमें mass हो. Clear? Or you always remember this force is always attractive. Gravitational force या दो मैसिव बॉडी के बीच का जो फोर्स लगता है ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिटन वर्ड अट्रैक्ट. क्लियर? तो दिस फोर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल. क्लियर? देन देयर किस तरह से अट्रैक्ट करता है? देन देयर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स will be directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between these two particles. चलिए हम इसका फार्मूला इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, then it will be more clear. तो for that what we are doing? We are taking a two particle system, we are taking in universe of masses m1 and m2. उनकी बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल r. क्लियर? देन दिस मास will be attracted by this mass and this mass will be also attracted by this mass. Means there is a force of gravitation. यही आपका जो हमने फोर्स F लिखा है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन.
Clear? Up from the statement, what statement is showing? If F be the force between these two masses, force between two bodies of mass, force between two bodies of mass m1 and m2, then and the separation between them is r, then from Newton's law of gravitation, in mathematical form, gravitation क्या बोल रहा है कि दिस फोर्स F जो एक्ट करेगा that will be directly proportional to the product of the masses m1 into m2. क्लियर? ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? F is inversely proportional to the square of the distance between those two particles. अगर डायरेक्टली बोलें तो 1/r स्क्वायर कह सकते हैं, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल. इन दोनों को हम साथ में भी लिख सकते हैं, कंबाइन कर लेते हैं इक्वेशन बाय 1 and 2, which implies F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दिस इज द कंबाइंड फॉर्म. हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया. और F is equal to this constant G m1 m2 upon r square. This is the expression for the force acting between the two bodies where G हमने एक इंट्रोड्यूस किया, where G is a कैपिटल G इसको लिखते हैं, याद रखिएगा. G is constant of proportionality and is known as are called universal gravitational constant. ठीक. Why universal? Because इसका वैल्यू जो होता है that does not depends on any factor. क्लियर? ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, न तो ये मास पे डिपेंड करता है, न तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, न तो पोजीशंस पे डिपेंड करता है. देयर इज नो फैक्टर ऑन विच ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. चलिए, तो इसके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं. व्हाट वी हैव फ्रॉम द न्यूटन्स, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स? F इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4, वी कैन राइट डाउन G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. लेट्स से अगर हम मान लें इफ m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 1 and r is equal to 1. इसका मतलब क्या है? If we are taking a body of unit mass 1, second body is also of unit mass and their separation between them is unit, मतलब 1 kg ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस को हम 1 मीटर मान लें, या तो 1 ग्राम उनके बीच की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मान लें. तो ये हम यूनिट वर्ड बोलने का मतलब कि हम उस यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं कि वो मीटर में दिया हुआ है कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सिर्फ वी आर टेकिंग एज ए यूनिट वैल्यू. ठीक. यूनिट कुछ भी हो जाएगी. जब भी यूनिट वर्ड यूज किया जाता है तो वहां पे वो स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि किस यूनिट की बात की जा रही है. ठीक. उसको 1 लेना है. अब 1 मीटर आप ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 किलोमीटर ले लें, दैट डजंट मैटर. तो अगर हम ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो व्हाट वी विल गेट देयरफॉर for this cases, then therefore F is equal to G 1 into 1 upon 1 square. So we will get the F is equal to G.
अब इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 and separated by a distance of unit. क्लियर? कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं ऑफ यूनिट मासेस एंड इफ दे आर प्लेस्ड एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी चीज को हम वर्ड में लिख ले रहे हैं जो हमने समझा कि दिस इंप्लाइज, दिस शोज दैट, दिस मीन्स what is the meaning of this? The universal gravitational constant may be defined as G। इसकी किसकी बात कर रहे हैं? मतलब हम कांस्टेंट G may be defined as किसके बराबर है? may be defined as the force of attraction between two bodies of unit mass each। हम दोनों बॉडी की, ये नहीं कि एक बॉडी 1 kg की दूसरी 2 kg की, दोनों बॉडीज के मास यूनिट मास होने चाहिए एंड प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। अगर दो बॉडीज ऑफ यूनिट मास की हैं और अगर उनके बीच की डिस्टेंस अगर यूनिट है देन उनके बीच का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें डायमेंशंस तो यू कैन फाइंड आउट, अगर आपने फाइंड आउट किया भी है इन द फर्स्ट चैप्टर, इसके डायमेंशंस को आपने फाइंड आउट किया भी है। चलिए यहां फिर से कर लेते हैं। डायमेंशंस की अगर हम बात करें, डायमेंशंस इसकी क्या होगी तो इसकी डायमेंशंस आप देखते हैं हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे हम क्या लिख सकते हैं, G विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इट्स क्लियर? G बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स कितना होता है, mLT⁻², मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इनटू इनटू डिस्टेंस L स्क्वायर विल बी देयर अपॉन m into m। You solve this, 1m will be cancelled out, this m what will be there, m⁻⁻1 L and L square L cube and T⁻², m⁻⁻1 L⁻3 and T⁻²। This is the dimensions of the masses, length and time in what, in the universal gravitational constant। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें इन एमकेएस सिस्टम, इसकी यूनिट अगर देखना चाहते हैं, यूनिट्स इन एमकेएस अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक तो यूनिट ये भी लिख सकते हैं या न्यूटन और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। इन सीजीएस सिस्टम अगर हम बात करें, सीजीएस सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर? तो एक ये भी यूनिट हो सकती है, g⁻² भी लिख सकते हैं। मेन आपको जो याद रखना है उसका वैल्यू आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी।
ये आपको याद रखना जरूरी है। इसका वैल्यू होता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यू शुड रिमेंबर g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट तो ही रहेगी, पर केजी स्क्वायर। क्लियर? और अगर सीजीएस में भी, अगर हम इसको सीजीएस में कैलकुलेट करना चाहें, ये तो हम केस में बात कर रहे हैं, आर जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो दीज आर द यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब तक इन दिस टॉपिक व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका स्टेटमेंट हमने देखा कि इन यूनिवर्स every body attract to the other body by a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। उसके लिए फिर हमने, और एक चीज और, ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज ऑलवेज along the line of the joining these two particles। दो पार्टी के बीच की जो लाइन ज्वाइन करती है, along that line it works। मैंने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में आई हैव शोन यू द फोर्स की डायरेक्शन हमने दिखाया है दोनों की। फिर उसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा कि अगर हमारे पास टू बॉडीज आर देयर ऑफ मासेस m1 एंड m2 और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो देन ग्रेविटेशनल फोर्स F will be equal to g m1 m2 upon r square, where g is the universal gravitational constant। क्लियर? अब g की अगर डिफाइन करना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट। और फिर इसकी यूनिट हमने देख लिया, डायमेंशनल फार्मूला देख लिया। इट्स वैल्यू यू शुड रिमेंबर 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2 आर 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर जी पावर -2 या पर ग्राम स्क्वायर। तो दिस इज होल अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर फॉर्म ऑफ द, अभी तक जो हमने बात किया था वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के बारे में बात किया था, या स्केलर फॉर्म हम कर सकते हैं, या इन मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड द ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज और टू पार्टिकल, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर दैट व्हाट वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग टू बॉडीज, एक हमने बॉडी लिया है A ऑफ मास m1 और दूसरी बॉडी हमने लिया है बॉडी B ऑफ मास m2। क्लियर? दस एंड दीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ r। दोनों बॉडी के बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, दैट इज r। क्लियर? अब हम बात करेंगे r1 r12, दो सिंबल हम यूज करेंगे, ये सिंबल आपको समझना है, ये कैप हमने लगाया है, ऊपर होना चाहिए, r21 ये कैप यूनिट वेक्टर r12 एंड यूनिट, ये दिस शुड बी, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, r12 ऐसे। ठीक, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर r12, यूनिट वेक्टर r21, और यहां पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F12 and this is the vector sign। Similarly, this force is equal to F21। अभी हम सिंबल क्लियर कर देंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21। पहले आप सिंबल लिख लीजिए कि वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21। तो हमने क्या क्या लिया है उसको एक बार लिख लेते हैं, सो दैट इट विल मोर क्लियर। से R12 ये हमने लिया है यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर, ये कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर को शो करता है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है कि दिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड r12 व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग द वेक्टर r। क्लियर? या इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ
सेपरेशन बिटवीन द या डिस्टेंसेस बिटवीन द टू पार्टिकल। ये हो गया यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में, ए से बी की डायरेक्शंस में होगा, ठीक। R21 क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम बी टू ए। फिगर से क्लियर है, देखिए R12 की डायरेक्शंस क्या है, दिस इज फ्रॉम ए से बी की तरफ, R21 की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम बी टू 1 की तरफ, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट, R12 की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R21, दिस इज फ्रॉम बी टू ए। क्लियर हो गया, ये हमने शो कर लिया। अब हम F12 के बारे में लिख लेते हैं। व्हाट इज द F12, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, is the gravitational force on A by exerted on A, applied या exerted on A by B। मतलब या तो 1 2 का मतलब फोर्स एक्सर्टेड, यहाँ पे 1 है ना, 1 फॉर A एंड 2 फॉर B, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द 1 मतलब A, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से। ये सिंबल हमेशा समझिए कि 1 जो पहले लिखा हुआ है इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, किसकी वजह से, तो दैट विल बी रिटन एज द सेकेंड। तो किसकी वजह से, 2 की वजह से, मतलब 2 का मतलब B। सिमिलरली F21 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी B, किसकी वजह से, 1 की वजह से, मतलब बॉडी 2 की वजह से, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से, एक्सर्टेड ऑन बी, किसकी वजह से, बाई बॉडी ए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं चलिए अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम न्यूटन्स, जब ये हमने पढ़ा था फार्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट वी हैव, F12 force acting on the body A due to the body B is equal to G m1 स्केलर है, m2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द स्केलर ना, क्लियर। अब इनके बीच की डायरेक्शंस R21 यूनिट वेक्टर, और यहां पे हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्यों, अभी हम समझते हैं क्या हो रहा है। F12 इस पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द बॉडी 2, तो यही तो हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 1 बिकॉज ऑफ द बॉडी 2, क्लियर। G मैग्नीट्यूड हम बात करें, G m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू, ये तो हमारा पूरी क्वांटिटी, दिस विल बी द स्केलर। हमें वेक्टर बनाना तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द वेक्टर, क्लियर। अब एक्चुअली आप ये देखिए, 5 वी हैव मल्टीप्लाइड वेक्टर R21 बिकॉज दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द बॉडी B ऑन A, तो ये वाला वेक्टर आपका इस पे काम करेगा, क्लियर। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया आपका कि चलिए, तो ये हमारा समझ में आया कि F12 क्यों हमने ले लिया, कि बिकॉज दिस F1 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन M1 मतलब बॉडी A, बिकॉज ऑफ द बॉडी 2 मतलब क्या हुआ कि दिस फोर्स, चलिए, तो दिस फोर्स, ये हमारा जो फोर्स F12, ये दिस इज अट्रैक्टेड बाय द, ये हम डायरेक्शन क्यों लिए हैं R21, बिकॉज दिस इज अट्रैक्टिंग, ये इसको अट्रैक्ट मतलब फोर्स इज अप्लाइंग ऑन दैट, तो ये क्या होगा, A बॉडी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट यूनिट वेक्टर विल बी मल्टीप्लाइड ऑन दैट बिकॉज दिस इज ड्यू टू द A B बॉडी,
वो बॉडी बी है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस वेक्टर। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि F12 जो होगा R21 की डायरेक्शन के अपोजिट है। आप फिगर से भी देख लें, फिगर में भी R21 की जो डायरेक्शन है दिस इज अलोंग दिस ए की तरफ, और इसकी डायरेक्शन किधर है, बी की तरफ। क्लियर। सिमिलरली ये तो हमने फोर्स फाइंड आउट किया, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए बिकॉज ऑफ द बॉडी 2। सिमिलरली वी हैव F21 फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू द बॉडी ए, मतलब अब बी बॉडी को ए अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा जी मैग्नीट्यूड में m1 m2 अपान इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, F1 ये इसका जो है F12 दिस, ये किसकी वजह से, 1 की वजह से 2 पे लग रहा है ना, तो यूनिट वेक्टर भी तो वही आएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा इसको। और यहां पे क्या हो रहा है, 2 की वजह से 1 लग रहा है, 2 जो बॉडी बी है वो 1 पे लगा रही है, यहां पे बॉडी 1 बॉडी 2 पे लगा रही है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग वेक्टर 2 1। ठीक, और दिस इज वेक्टर 1 2 एंड यूनिट वेक्टर। और यहां भी माइनस होगा क्योंकि 1 2 की और 2 1 की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब एक चीज और हम देखें, हमारे पास क्या होता है इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो वी हैव what we have, F R1 unit vector R21 is equal to minus unit vector R12। ये क्यों हमने लिखा है, both are the magnitude of 1 बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना। देखिए दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, वेक्टर R12 और वेक्टर 21 एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो ये क्या बताता है, अगर वेक्टर A बराबर अगर हम वेक्टर B लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बोथ आर द इक्वल वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर यहां माइनस लिख देते हैं इसका मतलब क्या होता है कि बोथ हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, तो वो चीज तो यहां वैलिड है ना। अब फ्रॉम दिस अगर इसको हम अप्लाई करें तो हम R21 की जगह हम लिख लें, अगर हम इस चीज को मान लीजिए यूज करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम R21 इसकी जगह हम इसको रखें तो दिस विल बी माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12, और ये दोनों को हम बराबर कर लेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 यूजिंग दिस, फ्रॉम यूजिंग 3 in 1 and 2 what we get F21 is equal to minus F12, मतलब कि जो बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही बॉडी A on the body B that is equal in magnitude attracted by the force on the body B A due to the body B। तो क्लियर, मतलब क्या हो गया कि दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड बिटवीन दीज टू पार्टिकल, मीन्स क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन two particles forms, जो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, इसी का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड हियर। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट। अब हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा अगर चाहें, ये तो हमारा हो गया कि इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें तो F12 अगर लिखना चाहें तो माइनस जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर टू द यूनिट वेक्टर R21, ये हमारा चेंज होगा। क्यों लिख रहे हैं R21, बिकॉज ऑफ 2 to 1 वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि क्या होगा ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन की मतलब यही है कि बोथ आर अपोजिट टू, मतलब ये अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है।
क्लियर, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से ऐसा नहीं कि ये इधर आएगा, ठीक, दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। तो इस वजह से हमने ये नेगेटिव साइन यूज किया है और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब इसकी कुछ अगर प्रॉपर्टीज के इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास होता है, ये क्या होता है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, क्योंकि देखिए मास जो होता है वो मीडियम पे तो डिपेंड करेगा नहीं बॉडी का, और उनके बीच की डिस्टेंस मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, दैट्स व्हाई, और जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो एफ जो होगा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो हमने अभी प्रूफ कर लिया, ठीक। और क्या होता है, इट इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर, हमने बात कर चुके हैं जब कंजर्वेटिव हम फोर्स पढ़ रहे थे, क्लियर, और हमने प्रूफ भी किया था इसके बारे में। एंड इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर टू बॉडी, मतलब अगल बगल जो भी बॉडीज अगर हैं उसके पार्टिकल्स के, तो उनका कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लियर। तो दिस इज होल अबाउट दैट।